بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، تحریک منہاج القرآن ایک عالمگیر دعوتی، تربیتی، اصلاحی اور تجدیدی تحریک ہے۔ دینی و اصلاحی اور تجدیدی تحریکوں میں دعوت کی ضرورت و اہمیت سے کون واقف نہیں ہے۔ تاریخ اسلام اور بالخصوص سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ دعوت کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ منزل کے حصول کے بعد بھی دعوت کا کام اسی طرح جاری رہتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی کئی خوبیوں اور امتیازی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ایک دعوتی نوعیت کی انفرادیت تحریک منہاج القرآن کو یہ بھی حاصل ہے کہ اول دن سے ہی تحریک اور قائد تحریک نے جدید ترین اور مؤثر ترین ذرائع دعوت کو اپنایا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی تاریخ میں تحریری، تقریری اور تنظیمی نوعیت کے ہر قسم کے ذرائع دعوت کو اپنایا گیا، لیکن تحریک منہاج القرآن سے وابستہ افراد، رفقائے کار، کارکنان اور عہدیداران اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان تمام ذرائع دعوت میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذیل العالی کے خطابات ایک مؤثر ترین ذریعہ دعوت ہے۔ مور دین 90% یا 95% لوگ اگر تحریک منہاج القرآن میں شامل ہوئے تو اس کی اول اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذیل العالی کے خطابات کو سنا۔ عصر حاضر میں سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے پیش نظر تحریک منہاج القرآن اور اس کی مرکزی لیڈرشپ نے ایک جدید ترین ذریعہ دعوت جو واٹس ایپ پر مشتمل ہے اسے متعارف کروایا۔ اس ذریعہ دعوت کو ہم فہم دین پروجیکٹ کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے فہم دین پروجیکٹ سے متعلق چند بنیادی اور ضروری سوالات کے جوابات کے لیے، فہم دین پروجیکٹ کے تعارف کے لیے، فہم دین پروجیکٹ ہے کیا، بطور مستفی کارکن ہم نے اپنی رجسٹریشن کیسے کروانی ہے، بطور مستفی کارکن ہم نے اپنی براڈ کاسٹ لسٹ کیسے بنانی ہے، اس براڈ کاسٹ لسٹ کو مرکزی سافٹ ویئر کے ساتھ ہم نے اپڈیٹ کیسے کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں اور مختصر ویڈیو پیغام میں ان تمام سوالات پر مشتمل ایک پیغام آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فہم دین پروجیکٹ ہے کیا۔ فہم دین پروجیکٹ بنیادی طور پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذیل العالی کے خطابات کے ذریعے دین کے فہم کو عوام الناس تک پہنچانے کا ایک پروگرام ہے۔ اب اس فہم دین میں سب سے پہلے ہم نے بطور مستفی کارکن اپنی رجسٹریشن کروانی ہے۔ جب وہ رجسٹریشن مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم نے براڈ کاسٹ لسٹ بنانی ہے، اور براڈ کاسٹ لسٹ میں جو افراد ہم شامل کریں گے ان تک پھر ہفتہ وار ہم نے کیسے شیخ الاسلام کے خطابات کو پہنچانا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ آگے ان ویڈیوز میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فہم دین پروجیکٹ میں ہم نے رجسٹریشن کیسے کروانی ہے۔ رجسٹریشن کروانے کے لیے اس ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے کہ بطور مستفی کارکن ہم نے اپنی رجسٹریشن کو کیسے یقینی بنانا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ فہم دین پروجیکٹ میں رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے۔ فہم دین سافٹ ویئر پر رجسٹریشن کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے گوگل کے سرچ باکس یا گوگل کروم براؤزر میں فہم دین پروجیکٹ کا لنک login.minhaj.org لکھیں۔ آپ کے سامنے فہم دین سافٹ ویئر کی
पहली स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन पर नजर आने वाले सब्ज रंग के बटन रजिस्टर पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म पर आपने अपनी मालूमात दर्ज करनी है। पहले खाने में अपना मुकम्मल नाम लिखें। अगले खाने में वल्दियत या ज़ौजियत दर्ज करें। इससे अगले खाने में अपने अकाउंट के लिए नया पासवर्ड तय करें। पासवर्ड ऐसा रखें जिसे याद रखना आपके लिए आसान हो। अगले खाने में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें। इससे अगले खाने में अपना फोरम मुंतखब करें। इससे अगले खाने में अपना ज़िला मुंतखब करेंगे। ज़िला मुंतखब करने पर एक नया खाना खुलेगा जिसमें आप अपनी तहसील मुंतखब करेंगे। तहसील मुंतखब करने के बाद अब रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने से एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपसे OTP कोड मांगा जाएगा। इस दौरान सिस्टम की तरफ से आपको OTP मैसेज भेज दिया जाएगा। OTP में भेजा गया कोड इस खाने में लिखें और ये बटन दबाएं। इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब आप अपने फराहम करदा व्हाट्सएप नंबर और पासवर्ड की मदद से सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमने इस वीडियो को देखा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं जो आप इसको देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर इस वीडियो को आप देखिए और इस वीडियो को स्टेप वाइज आप स्टॉप करके देखते जाएं और साथ साथ जो चीज़ वीडियो में आप सुने उसकी अमली तौर पे मश्क भी करते जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। फहमेदीन सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार। सबसे पहले गूगल के सर्च बॉक्स या गूगल क्रोम ब्राउज़र में फहमेदीन प्रोजेक्ट का लिंक login.minhaj.org लिखें। आपके सामने फहमेदीन सॉफ्टवेयर की पहली स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन पर नजर आने वाले सब्ज रंग के बटन रजिस्टर पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म पर आपने अपनी मालूमात दर्ज करनी है। पहले खाने में अपना मुकम्मल नाम लिखें। अगले खाने में वल्दियत या ज़ौजियत दर्ज करें। इससे अगले खाने में अपने अकाउंट के लिए नया पासवर्ड तय करें। पासवर्ड ऐसा रखें जिसे याद रखना आपके लिए आसान हो। अगले खाने में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें। इससे अगले खाने में अपना फोरम मुंतखब करें। इससे अगले खाने में अपना ज़िला मुंतखब करेंगे। ज़िला मुंतखब करने पर एक नया खाना खुलेगा जिसमें आप अपनी तहसील मुंतखब करेंगे। तहसील मुंतखब करने के बाद अब रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने से एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपसे OTP कोड मांगा जाएगा। इस दौरान सिस्टम की तरफ से आपको OTP मैसेज भेज दिया जाएगा। OTP में भेजा गया कोड इस खाने में लिखें और ये बटन दबाएं। इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब आप अपने फराहम करदा व्हाट्सएप नंबर और पासवर्ड की मदद से सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो सकते हैं। जो अफराद अपने आप को बतौर मुस्तफ़ी कारकुन रजिस्टर कर चुके हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करने के बाद अब अगला स्टेप ये है कि बतौर मुस्तफ़ी कारकुन रजिस्टर करने के बाद हमने अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट को बनाना है और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम अफराद को शामिल करेंगे जिनको हमने शेखुल इस्लाम के खिताबात सुनवाने। अब वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाई जाती है उसके लिए हम ये एक और वीडियो देख रहे हैं। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने का तरीका। व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना बहुत आसान है। फहमेदीन प्रोजेक्ट की इस वीडियो में हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने का तरीका जानेंगे। अपनी एंड्रॉयड डिवाइस पर व्हाट्सएप एप्लीकेशन खोलें और ऊपर कोने में मौजूद 3 उमूदी नुक्तों यानी 3 डॉट्स मेन्यू पर टैप करें। खुलने वाली मेन्यू से न्यू ब्रॉडकास्ट के ऑप्शन पर टैप करें। हमारे सामने हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स खुल गए हैं। हम इनमें से उन नंबर्स को मुंतखब करेंगे जिन्हें हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं। याद रहे, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 256 मेंबर्स शामिल किए जा सकते हैं। नंबर्स मुंतखब करने के बाद अब स्क्रीन पर नीचे दाएं तरफ नज़र आने वाले सब्ज रंग के टिक के निशान पर टैप कर दें। हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन चुकी है। व्हाट्सएप चैट्स की लिस्ट में ब्रॉडकास्ट लिस्ट लाउड स्पीकर के निशान के साथ नज़र आ रही है। आइए अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट को मैनेज करने का तरीका भी समझ लेते हैं। अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को बेहतर अंदाज में मैनेज करने के लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट खोलें। उन्वान की सब्ज पट्टी पर वसूल कुनिंदगान की तादाद नज़र आ रही है। इस पर टैप करें। यहाँ कलम के निशान पर टैप करके हम अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नाम या उन्वान लिख सकते हैं। मज़ीद मेंबर्स को लिस्ट में शामिल करने
या किसी मेंबर को लिस्ट से निकालने के लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट खोलकर टॉप पर लिखे लिस्ट के नाम पर टैप करें और एडिट रिसिपिएंट का ऑप्शन खोल लें। यहाँ हम किसी नए फर्द को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ऊपर रॉ में लिस्ट के मेंबर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ किसी मेंबर के नाम पर टैप करके उसे लिस्ट से निकाल सकते हैं। हल्का अहबाब और लोगों के मिजाज के मुताबिक हम एक से ज़्यादा लिस्टें भी बना सकते हैं। जी, हमने इस वीडियो को देखा कि ब्रॉड का लिस्ट कैसे बनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको पहली भी और ये वीडियो भी समझ भी आई होगी और आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म को यकीनी बनाया होगा। अब ब्रॉड का लिस्ट की तैयारी के हवाले से मैं चंद एक गुजारिशात आपके सामने कर देता हूँ। आपने वीडियो में भी कुछ हिस्सा उसका सुना कि ब्रॉड का लिस्ट में सबसे पहली चीज़ जिसको हमने यकीनी बनाना है वो ये कि जिस फ़र्द को हम ब्रॉड का लिस्ट में शामिल कर रहे हैं आप उनसे टेलीफोनिक या मैसेज के ज़रिए पहले बाकायदा इजाज़त लें। जब वो इजाज़त लें तो अपना नंबर आप उन्हें कहें कि वो अपने मोबाइल में आपके नंबर से सेव भी करें, ताकि जब आप ब्रॉड का लिस्ट के ज़रिए उन्हें मैसेज भेजें तो वो मैसेज उन तक पहुँचे भी। इसी तरह ब्रॉड का लिस्ट में इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ब्रॉड का लिस्ट में तहरीक मिनहाजुल कुरान या किसी भी फोरम के मरकज़ से लेके यूसी या यूनिट सतह तक किसी ओहदेदार को शामिल नहीं करना, क्योंकि ओहदेदारान जितने हैं मुल्की सतह पर वो सारे बतौर मुस्तफ़ी कारकुन खुद अपना काम कर रहे हैं। तो आपने ब्रॉड का लिस्टों में किसी ओहदेदार को शामिल नहीं करना। इसी तरह जो आप ब्रॉड का लिस्ट बना चुके हैं या बनाएंगे, इस वीडियो को दोबारा देखने के बाद उसमें इस चीज़ को भी आपने यकीनी बनाना है कि उस ब्रॉड का लिस्ट में हफ्तावार शेखुल इस्लाम मदज़िलुल आली के इन 2 खिताबात के अलावा आपने कोई लिटरेचर, कोई खिताब, कोई मवाद नहीं भेजना। सिर्फ उस ब्रॉडकास्ट में हफ्तावार ये 2 क्लिप्स ही आप भेजेंगे, इसके अलावा कोई चीज़ आपने ब्रॉडकास्ट में नहीं भेजनी। जी सामीन और नाज़रीन, आखिरी चीज़ इस हवाले से आपके सामने मुख्तसरन ये भी वाज़े करता चलूँ कि हमने ब्रॉड का लिस्ट भी बनाई। आपने बतौर मुस्तफ़ी कारकुन हमने अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है उस वीडियो को देखा और बतौर मुस्तफ़ी कारकुन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। ब्रॉड का लिस्ट कैसे बनानी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो चीज़ें आपने देखी। अब आखिर पर मैं मुख्तसरन 2 चीज़ें मज़ीद वाज़े करता चलूँ। पहली चीज़ कि बतौर मुस्तफ़ी कारकुन जो हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, हमने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कैसे करना है, एक हम ये वीडियो देखते हैं और दूसरा जो ब्रॉड का लिस्ट हमने बनाई है उस ब्रॉड का लिस्ट को मरकज़ी सॉफ्टवेयर के साथ हमने अपडेट कैसे करना है, ये भी हम वीडियो देखते हैं और इसके मुताबिक अपनी प्रोफाइल को और अपनी ब्रॉड का लिस्ट को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, ये वीडियोस हम देखते हैं। इसके लिए आप ये वीडियोस देखिए। फहमेदीन सॉफ्टवेयर प्रोफाइल अपडेट करने का तरीका। फहमेदीन सॉफ्टवेयर का लिंक login.minhaj.org खोलें। यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर और पासवर्ड लिखें। पासवर्ड के खाने के नीचे एक मध्यम सा डब्बा नजर आएगा जिसके सामने कीप मी लॉग्ड इन लिखा हुआ है, इसे टच करें। टच करने पर उसमें टिक का निशान नजर आने लगेगा। अब आपका पासवर्ड आपके मोबाइल में महफूज हो चुका है और आपको सॉफ्टवेयर खोलने के लिए हर बार पासवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा। अब नीले रंग के बटन को टच करके लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने पर फहमेदीन सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और आपको ये स्क्रीन नजर आएगी। अब स्क्रीन के टॉप पर नजर आने वाले 3 उमूदी नुक्तों यानी 3 डॉट्स मेन्यू को टच करें। यहाँ आपको एक और स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। उसमें से ऐड टू होम स्क्रीन को टच करें। सिस्टम आपसे होम स्क्रीन आइकन का नाम कंफर्म करेगा। यहाँ ऐड को टच कर दें। आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर फहमेदीन सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बन जाएगा। आइंदा आप इस आइकन को टच करके डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो सकते हैं। फहमेदीन सॉफ्टवेयर में पहली बार लॉगिन होने पर आपको एक अलर्ट नजर आएगा जिसमें आपसे अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करने का कहा जा रहा होगा। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ऊपर बने पेंसिल के निशान को टच करें। आपके सामने एडिट प्रोफाइल का सफ़ा खुल जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन के वक्त फराहम करदा आपका नाम, वल्दियत, ज़िला, तहसील और फोरम पहले ही लिखा हुआ होगा। आपको अपना ईमेल एड्रेस, मेंबरशिप नंबर और प्रोफेशन वगैरह की मालूमात अपडेट करना है। याद रखें
यहाँ अपना दुरुस्त ईमेल एड्रेस दर्ज करना ज़रूरी है ताकि पासवर्ड भूल जाने की सूरत में इसकी मदद से आपको नया पासवर्ड भिजवाया जा सके। मालूमात मुकम्मल करने पर आपकी प्रोफाइल 100% अपडेट हो जाएगी। फ़ाहमेदीन सॉफ्टवेयर, ज़ेर दावत अफराद की ब्रॉडकास्ट लिस्ट, मरकज़ को आगाह करने का तरीका। हम उम्मीद करते हैं कि आप फ़ाहमेदीन सॉफ्टवेयर के सिलसिले की पिछली वीडियोज़ को न सिर्फ देख चुके हैं बल्कि अपना अकाउंट बनाकर अपनी प्रोफाइल को भी 100% अपडेट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल किए गए ज़ेर दावत अफराद की मालूमात मरकज़ के साथ शेयर करने का तरीका बताएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा वर्कर्स एक ही फ़र्द को अपना ज़ेर दावत फ़र्द करार देकर उसे वीडियो क्लिप्स भेजने लग जाते हैं। इससे जहां दोहरी तवानाई सर्फ होती है, वहीं अगला बंदा सेम पैगामात देख कर तंग भी आ जाता है। सॉफ्टवेयर में मौजूद इस फीचर की मदद से हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई शख्स एक से ज़्यादा वर्कर्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल ना हो और उसे एक से ज़्यादा वर्कर्स की तरफ से क्लिप्स ना भिजवाए जा रहे हों। फ़ाहमेदीन सॉफ्टवेयर के इस फीचर की मदद से हम दोहरी तवानाइयाँ सर्फ करने की बजाय नए लोगों तक वीडियो क्लिप्स पहुँचा सकेंगे। सॉफ्टवेयर में आपको ऐड टू ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नीलगू रंग का बटन नज़र आएगा। इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ ज़ेर दावत फ़र्द का नाम लिखें, अगले खाने में उसका व्हाट्सएप नंबर लिखें, अगले खाने में ज़िला का इंतखाब करें, फिर तहसील मुंतखब करें। उसके बाद यहाँ से अपनी मर्ज़ी का टैग लगाएं। आप एक से ज़्यादा टैग्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद ज़ेर दावत फ़र्द की जिन्स मुंतखब करें और फिर सेव के बटन पर क्लिक कर दें। अब वो फ़र्द आपके ज़ेर दावत फ़र्द के तौर पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर उसकी शमूलियत का नोटिफिकेशन भी ज़ाहिर हो जाएगा। यहीं ऐड न्यू का बटन भी मौजूद है, जिस पर क्लिक करके अगले फ़र्द को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अगर आपकी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल फ़र्द किसी और वर्कर की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी शामिल है और वो आपसे पहले सॉफ्टवेयर की मदद से मरकज़ को इससे आगाह कर चुका है, तो सेव के बटन पर क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर ये मैसेज दिखाई देगा, जिसमें नीले रंग में लिखे गए अल्फाज सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आप उस वर्कर से दरख्वास्त कर सकते हैं कि मज़कूरा ज़ेर दावत फ़र्द आपका करीबी अजीज़ या मोहल्लेदार है। चुनाचे वो इस ज़ेर दावत फ़र्द को आपकी लिस्ट में शामिल तस्लीम करके अपनी लिस्ट से निकाल दे। जो ही दूसरा वर्कर आपकी दरख्वास्त को तस्लीम करेगा तो वो ज़ेर दावत फ़र्द मरकज़ के रिकॉर्ड में आपके ज़ेर दावत अफराद की लिस्ट में ज़ाहिर हो जाएगा। किसी ज़ेर दावत फ़र्द के नाम को क्लिक करके उसकी मालूमात में किसी भी किस्म की तब्दीली लाई जा सकती है। जूं आप अपने ज़ेर दावत अफराद का डाटा मरकज़ के साथ शेयर करते जाएंगे, सॉफ्टवेयर में मौजूद पाई चार्ट्स और बार ग्राफ भी अपडेट होते जाएंगे। बिहम्दिल्लाह ताला हमने तमाम वीडियोस को देखा, हमने काम कैसे करना है ये सारी चीज़ें हमने देखी और प्रैक्टिकल भी इसका हमने यकीनी बनाया। तमाम सामीन और नाज़रीन और बिलखुसूस मिनहाजुल कुरान के जो रफ़क़ा और वाबस्तगान और कारकुनान हैं, उनसे मैं बारे दीगर यही दरख्वास्त भी करता हूँ कि असर हाज़िर में इससे बढ़कर जदीद तरीन और मौसर तरीन शायद ज़रिए दावत हमें मुयस्सर न आए कि हम बहुत ही कम वक्त में और बग़ैर किसी लंबी चौड़ी मेहनत के बग़ैर हम लाखों लोगों तक दीन के फ़हम को पहुँचा सकते हैं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दसल्लुल्लाह अलैहि की फ़िक्र और आपका नज़रिया लोगों तक पहुँचा सकते हैं और इस मुस्तफ़वी मिशन की हम घर बैठे आसानी के साथ खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम के फ़हम को अवामुन्नास तक पहुँचाने की और इस मुस्तफ़वी मिशन को अवामुन्नास तक पहुँचाने की सआदत भी अता फ़रमाए, तौफ़ीक भी अता फ़रमाए और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा भी अता फ़रमाए। अभी तक अगर किसी साथी को किसी हवाले से कोई तिश्नगी हो तो वो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमसे बराह रास्त रहनुमाई भी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।